Hello friends, welcome to CEC Gurukul Live Lectures. Dear friends, this is a session on career counseling called Pratibha Sambardhan. Every time we give you insight so that we could help you out in finding a best career for you. And apart from that, we make persistent efforts so that we could make out the better version of you, because we believe that wherever you go, whatever you do, your being will always be there. It will help you to win different situations. It will help you to lead a beautiful life. Friends, today we are talking on one of the important topics, why it is important to take lead and how one can take lead. We had a vivacious session where we discussed on different aspects such as taking initiatives, how confidence building is very, very important. Now, continuing our talk further, we would like to tell you all that we have with us in our studios, Miss Khushi Gupta. Miss Khushi Gupta is a vivacious youth, I would say, and she, with the dint of her knowledge, her wisdom, as well as her inner zest to achieve in life, is making a difference in her own life, and she would like to make a difference in your lives too. If you have any question pertaining to today's topic, you may talk to us. You may call us through our toll-free number. Our number is 1-800-110-430. Now, I would like to welcome our guest, Miss Khushi, once again. And Miss Khushi, as you have given a very insightful session where we discussed on different aspects and how one can take lead. If there is something very important you would like to tell to our students, please feel free to talk to them and tell us what is there for them in store by you. So now we will talk about building your own personal brand. So in order to lead yourself in various places in life, whether it is in your career or in your college or in personal life, you should have a brand of your own. That is how you present yourself to the world. It encompasses your skills, values, experiences and goals. So start cultivating your personal brand now by exploring your interests, developing your skills and actively participating in activities that align with your values. Join different online courses or extracurricular activities. If you enjoy dancing or any kind of sports, dedicate time to that so that you can build that particular skill of yours. Now, we talked about many things. We talked about being a self-leader. We talked about being confident. We talked about taking initiative or building resilience. Now, can you learn these things in just half an hour or an hour? No, right? These skills are continuous. They are lifelong learning skills. So, embrace opportunities and challenges to learn and to improve. Continuously reflect on your progress, set new goals, and refine your approach. Self-leadership is not a destination. It is a continuous journey. Remember, the skills that you develop now will equip you to navigate challenges and seek opportunities, and it will help you to become the best version of yourself throughout your life. Thank you. That is all that I had for my presentation. Thank you so much once again for giving us this insightful session. Of course, now there are certain set of questions in my mind, and the questions, because I too have suffered or I too have gone through that phase when I was in college or was making career, and there were lots of people with me and behind me and away from me, and I always needed support. So as you have explained in the presentation also, that support is a very important thing in life, because if you get support, you know that yes, I can walk 2 steps ahead or I can make 4 steps ahead. So to what extent support is important, because sometimes supports it kills you, because every time when you are getting support, it kills you in the sense कि आपसे फिर लगता है आपको कि अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक सपोर्ट मिला तब तक आप आगे बढ़ते गए, पर जिस दिन सपोर्ट मिलना बंद हुआ उस दिन से आपको लगने लगा कि अब नहीं हो पाएगा. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू बिलीव दैट सपोर्ट शुड बी गिवन टू एनीवन? मैम, आई थिंक इसमें फिर से हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लीडरशिप आता है. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस नीड सपोर्ट इन द वर्क ऑफ लाइफ, बट हमें
we should be the captain of our own ships. सुनो सबकी पर करो अपनी. So for example, you always have supportive friends, but कभी कभी जो आप कर रहे हो उसे अपने तक ही रखना चाहिए. एंड यू शुड नो कि आपको कौन सी चीज़ प्राइवेट रखनी है और कौन सी चीज़ शेयर करनी है. आपको फॉर एग्जांपल आपको अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से या अपने मेंटर्स से सपोर्ट मिलता है, सो आपको लगता है कि वो इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं, देन डू डिस्कस इट विद देम. बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आप खुद कर लोगे, तो कीप इट पर्सनल एंड डू द टास्क. We have seen lots of students also, like you said, that some things should be kept in a pocket. In the sense, for example, कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को नहीं बताएगा. क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं उसका मोरल जो है उसे लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे. So one hides sometimes. क्या it's a part of your confidence, or you are underconfident, or what do you want to say? मैम आई थिंक हम इस चीज़ को कभी कभी गलत वे में ले जाते हैं कि फ्रेंड्स हमारा मोरल तोड़ेंगे. ऐसा यूजुअली नहीं होता, बट द थिंग दैट हैपन्स अननोइंगली अनकॉन्शियसली बाय फ्रेंड्स इज़ दैट जैसे कोई ऐसे बोल देता है कि ये तो हमेशा बिजी ही रहता है, इसका तो एग्ज़ाम है. सो वो कभी कभी, एंड आप देखते हो आपके सारे फ्रेंड्स लाइक एन्जॉय कर रहे हैं, तो वो कभी कभी आपको इट गिव्स यू फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो वो हमें कभी कभी बुरा लगता है. तो हाँ, आई मीन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हमेशा मोरल तोड़ते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू शुड टेक थिंग्स पॉजिटिवली एंड अपना फोकस रखो. लाइक आपका अगर कोई एग्ज़ाम है तो उस पर फोकस्ड रहो, आप प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ आपको इन चीज़ों में मिस आउट करना पड़ेगा, आप सारे फेस्ट अटेंड नहीं कर सकते. वेरी ट्रू. अगर हमें लाइफ में कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना पड़ेगा. जैसा कि हम कहते हैं, समटाइम्स वी सेव टाइम एंड समटाइम्स वी सेव मनी एंड समटाइम्स वी सेव फ्रेंड्स. सो वी नीड टू डिसाइड व्हाट एक्चुअली वी वांट इन लाइफ. बट इफ वी वांट टू मेक a beautiful career, then of course we need to concentrate on our time more, because जितना हम टाइम सेव करेंगे हमारे लिए आसान हो जाएगा अपने काम को उतना डेडिकेट करना. अगर आज के यूथ के, आज के बच्चों की बात की जाए ना, तो वो कौन सी सबसे ज्यादा परेशानी है, कौन सी वो बात है सबसे ज्यादा परेशान करती है? बिकॉज देयर वर टाइम्स व्हेन द यूथ ओनली हैड वन थिंग, दैट दे नीड टू मेक करियर. बट नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम द वर्ल्ड इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एंड नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ प्रेशर्स. चाहे फिर वो बात की जाए कि करियर की तो है ही है, फिर हमारे पास बहुत सारा प्रेशर हमारे फ्रेंड्स से भी है, सोसाइटी से भी है. सो व्हाट आर द प्रेशर्स you people deal with in day-to-day life, and do you think those issues, those pressures are needed to be taken care of? उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, because they are very important. Yes मैम सबसे बड़ा प्रेशर तो आज यही है कि लिंक्डइन जो है उसमें हम देखते हैं सब लोग, क्योंकि लिंक्डइन पे ऑफ कोर्स सब अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं एंड एग्जैजरेट करके दिखाते हैं. तो हमें लगता है कि ये तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और हम तो सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं और बस एक ये चीज़ और कर रहे हैं. तो हमें लगता है कि हम पीछे हैं सबसे. ये हम इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रेशर लेते हैं. बट आई थिंक इस बात का इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए. बस यही सोचना चाहिए कि हमें जितना हो सके एक्सप्लोर करना है. दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट आई हैव रिसीव फ्रॉम माई फादर, दैट यू नीड टू एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन. अपना टाइम मत वेस्ट करो. इफ़ यू आर नॉट गोना रिस्पेक्ट टाइम, दैट टाइम इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. सो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप सुबह कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाओ, कॉलेज की पढ़ाई करो, थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करो. फिर उसके बाद आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, हेल्थ पे फोकस करो, इंटर्नशिप्स करो, और आपको कोई कोर्स, जैसे आपको एक्सेल सीखना है या फिर बाकी टेक्निकल स्किल्स सीखने हैं, उनके कोर्सेज करो. तो कीप लर्निंग, डोंट स्टॉप, बिकॉज टाइम नहीं रुकेगा. ऑफ कोर्स टाइम नहीं रुकता है, कीप्स ऑन फ्लोइंग. और कहते हैं कि जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता. फिर आप कितने भी अमेंडमेंट्स करते रहें, कितने भी करेक्शंस करते रहें, यू कैन मेक करेक्शंस, बट व्हाट यू हैव लॉस्ट, इट मीन्स यू हैव लॉस्ट. नाउ अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज करिकुलम, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू वर्क ऑन वन ओन सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स माइट हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, और सम किड्स माइट हैव दिस हेल्थ इश्यूज. तो क्या अगर हम इन इश्यूज पर काम करते हैं, वी मेक आवर बेटर टुमारो?
Yes, ma'am. I think it is very important to introspect, and introspect करके आपको समझना चाहिए कि आप में ये कमियां हैं. These are the things that you lack. इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेवरी होती है. तो अगर आपको लग रहा है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, so try to आप जैसे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर आप कोई सोसाइटी का पार्ट ले रहे हो, उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होते हैं, उसमें आपके टेक्निकल स्किल्स बेटर होते हैं. तो मेरे को तो ये लगता है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि आप और चीज़ें सीखो. जैसे कि आपने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीवन शुड डू इंट्रोस्पेक्शन एट वॉट एवर स्टेज ऑफ लाइफ वी आर डीलिंग विद, इवन इफ वी इंट्रोस्पेक्ट डेली. तो कभी कभी ये होता है कि मैं कोई काम इसलिए करना चाहती हूँ कि मेरा दोस्त उस काम को कर रहा है. इफ समबडी इज फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू द फुटबॉल क्लासेस बिकॉज माई इमीडिएट फ्रेंड और माई डियर फ्रेंड इज गोइंग फॉर द फुटबॉल क्लासेस, मैं फुटबॉल खेलने के लिए जाना चाहती हूँ. तो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास. वन इज वेदर आई एम इन्फ्लुएंस्ड और आई एम मोटिवेटेड. इट शुड बी टेकन केयर ऑफ. समटाइम्स किसी की मोटिवेशन से आई गेट अ पाथ, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगर सामने वाला फुटबॉल खेल रहा है तो मैं भी मैं अच्छी निकल सकती हूँ. सो व्हाट डू यू वांट टू से, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू इंट्रोस्पेक्ट टू एन एक्सटेंट कि ये भी डिसाइड करना कि मुझे जरूर फैसिनेट कर रहा है, मुझे जरूर इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मैं भी खेलूं. वो मोटिवेशन भी हो सकता है, बट समटाइम्स इट इज नॉट फॉर गुड बिकॉज यू हैव नॉट डिसाइडेड एंड यू हैव नॉट इंट्रोस्पेक्ट व्हाट गुड यू हैव. Yes. So how one can cope up with this particular thing? मैम आई थिंक आप जब इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो आपको पता होता है कि अभी मतलब फॉर अ शॉर्ट पीरियड, आप एक मंथ के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होने वाली है. हमारी प्रायोरिटीज़ हर हफ्ते भी चेंज हो सकती हैं, हर महीने भी चेंज हो सकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हर दिन चेंज हो रही हैं. तो एक अपने आप को टाइम स्पैन देना चाहिए कि इस टाइम तक, एक महीने तक मेरी ये प्रायोरिटी होने वाली है. मान लो मैंने आज अपना मेरा गोल सेट है कि इस महीने मेरे को मेरे को अपने फॉर एग्जांपल मेरे को कोई डिजिटल मार्केटिंग की क्लास करनी है एंड मेरे को कॉलेज करना है एंड मेरे को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है. लेकिन मेरा एक फ्रेंड है और वो मुझे बोल रहा है कि आई एम डूइंग दिस स्टॉक्स का कोर्स, स्टॉक वैल्यूएशन का कोर्स, यू ऑल्सो डू इट विद मी. तो मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ कि यार स्टॉक्स भी सीख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सेट है, मुझे पता है मेरे पास टाइम नहीं निकल पाएगा. अगर मैं ये सोच के कि मेरे सारे फ्रेंड्स वो स्टॉक वैल्यूएशन वाली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे को भी सीखनी चाहिए और मैं वो भी ज्वाइन कर लेती हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस मिस करूँगी, मैं वो भी ढंग से नहीं कर पाऊँगी, मैं कॉलेज का भी काम ढंग से नहीं कर पाऊँगी. सो आई थिंक थोड़ा सा स्लो भी चलना चाहिए और अपना जो आपने प्रायोरिटीज सेट करी हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने सोचा है कि अभी की मेरी प्रायोरिटी ये है तो उतनी ही रखनी चाहिए. Now, one of the most important questions, how important it is to know your surroundings. अपनी surroundings को जानना कितना ज़्यादा important है presently अगर हम youth की बात करें, because they need to enter into a job market in future, as well as they need to take in case a good admission in a good college, or yeah, if they want to have their own business, they want to be entrepreneurs, something like that, because sky is the limit. So in that case, in knowing a life at a better scale, do you know or you feel that knowing your surroundings is important? Though we cannot adopt everything from the surroundings, क्योंकि हमें surroundings से जो कुछ मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं हम हर उस चीज़ को adopt करें, because our age is also one of the important criteria. So do you feel that knowing surroundings is important? It helps you boosting your confidence, because anyone anywhere, when if in case asks your question, तो आपको पहले से पता है, and you become, कहते हैं कि सजग युवा बन जाते हैं आप. तो आपको क्या लगता है इस बारे में? मैम आई थिंक हाँ, इम्पॉर्टेंट तो होता है दैट यू बिकम अ गुड ऑब्जर्वर, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करके चलो. बट एक और चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि आप
सब कुछ नहीं जान सकते. हमें इस बात का भी बहुत प्रेशर होता है. जैसे मेरी जीके बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने इस बात का पहले बहुत प्रेशर लिया था कि सो आई ट्राइड टू स्टे अप टू डेट टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड अपने करंट अफेयर्स को जानने की कोशिश करी. बट हमेशा हमें एक भी ये चीज़ भी आनी चाहिए कि वी एक्सेप्ट कि ओके, आई डोंट नो दिस राइट नाउ, आई विल think about it more, I will study about it more, and उसके हिसाब से I'll gain more knowledge. and बाकी अगर knowing your surroundings related to career हम बात करते हैं, तो हाँ, हमें हमेशा देखना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बट अपने पाथ को थोड़ा क्लियर रखने की कोशिश करनी चाहिए. और अगर हमारा पाथ क्लियर नहीं हो पा रहा है, देन वी शुड सीक आउट हेल्प. वी शुड सीक आउट हेल्प फ्रॉम करियर काउंसलर्स, और हमारे एल्डर्स, लाइक हमारे कज़न्स होते हैं, एल्डर कज़न्स, और हमारे सीनियर्स कॉलेज के या फिर कोई भी, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं. बहुत बार बहुत से बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि वो इनिशिएटिव तो लेते हैं, but when you are at this age and when you are applying for different universities, colleges, or you are planning to crack examinations, आप फेलियर्स भी फेस करते हैं. और इस उम्र का, इस एज का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कहीं ना कहीं फेलियर्स है. सम स्टूडेंट्स, सम पीपल आर डिसहार्टेंड वेरी इजीली, और वहीं पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाता है. लगता है अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, बिकॉज वी हैव फेल्ड सो मेनी एग्जामिनेशन एंड नाउ नथिंग कैन बी डन. उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? Because this age is a very tender age where your dreams shapes, reshapes, build, shatter, और कभी कभी तो आप फ्लाई करना शुरू करते हैं because you get your dreams very easily. But for all those whose dreams are shattered, उनके लिए क्या कहना चाहते हो, या what do you want to recommend them? क्योंकि एक बार अगर आपका ड्रीम टूटता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत जोर से कहते हैं ढह जाता है, आपका सपनों का मकान गिर जाता है. So for them, for those students, what do you want to say? मैम, आई थिंक हमेशा करेज रखना चाहिए. मान लो कोई यूपीएससी का स्टूडेंट है एंड उसके सारे अटैम्प्ट्स ख़त्म हो गए हैं एंड ही कुडंट क्रैक द एग्ज़ाम. ऑफ कोर्स ही विल बी वेरी शैटर्ड, ऑफ कोर्स ही विल बी वेरी डिस्करेज्ड, बट आई थिंक एज ए ह्यूमन हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि ठीक है, शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी थी. सो एक्सप्लोर मोर. आप और किसी चीज़ में, क्या पता वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हो. सो यू नेवर नो. सो शैटर तो सब होते हैं, तो गिव योर सेल्फ टाइम. फेलियर, जैसे हमने पहले बात करी, एक सेटबैक को अपनी मोटिवेशन बनाओ. अपने आप को पॉजिटिवली अफर्म करो कि कोई नहीं, हमसे ये नहीं हो पाया, क्या पता मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ या बना हूँ. सो फोकस ऑन दैट. एंड कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपना जो लॉस है, मतलब जो मेरा फेलियर है, मैं उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकता. हमेशा करना चाहिए, थोड़े टाइम तक गिव योर सेल्फ टाइम, उससे उभरना चाहिए एंड देन बाकी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. Now, another important question. Do you believe that life skills are important? हम बहुत कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, अपने आप को बेटर, अपने आप को ब्यूटीफुल रखने की पूरी कोशिश रखते हैं, so that we can be into the cutthroat competition. But the other half of the life, which we understand after some time, क्योंकि वो हम उसे इससे पार कर जाते हैं. Though I don't know whether it's appropriate to ask, but do you feel that life skills भी learn करना उतना ही important है जितना लाइफ की दूसरी स्किल्स हम लर्न करते हैं, कि हमने कैसे करियर बनाना है, कैसे हमें गुड जॉब को हंट करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू हेल्प योर मदर एट होम, है ना, व्हेन यू आस्क योर फादर लेट मी डू दिस वर्क, इट्स ऑल्सो हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस. सो एवरी चाइल्ड शुड डू सो दैट उनके लिए रास्ता आसान हो जाए. यस मैम, आई थिंक बिल्कुल बहुत ज़रूरी है लाइफ स्किल्स को भी लर्न करना. इसमें फिर से टेकिंग इनिशिएटिव्स वाला पार्ट आ जाता है कि आप घर में खुद इनिशिएटिव ले रहे हो कि अपने रूम से उठ के अपनी प्लेट खुद लाओ. डोंट वेट फॉर योर मदर टू गिव यू द प्लेट. आप रिस्पॉन्सिबल बनो, आप केयरिंग बनो. ये सारे लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप डिसिप्लिन्ड बनो. आप अपने लिए इनिशिएटिव लो कि मैं एक टाइम मैनेजमेंट रूटीन में चल रही हूँ या चल रहा हूँ. एंड ऑफ कोर्स ये सब कुछ इनिशिएटिव लेकर ही आएगा. एंड लाइफ स्किल्स इज़ ऑल्सो अ वेरी कंटिन्यूस जर्नी. ये सब जब आप अपने घर के शेल से बाहर निकलते हो तभी आपको सीखने को मिलता है.
Very true. The more you are out into the outer world, the more challenges you face. Now, last but not the least, any do's and don'ts you want to tell right now? कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए. Though they are not do's and don'ts, because do's and don'ts हर किसी के लिए बदल सकते हैं. आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, किसी और के लिए कुछ और होंगे. But in a nutshell, if you want to say कि ऐसा जरूर करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. Do you have such points or such tips to be given to the student community or the friends who might be watching you? किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड डूज एंड डोंट्स या फिर इन जनरल? Regarding your life, regarding how you frame yourself as well as you shape yourself. जब आपके करियर की बात आती है, आपके बीइंग की बात आती है, so what is that important one thing in fact कि वो एक ऐसी कौन सी चीज है जो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? If you feel so, you like to tell us. मैम आई थिंक आइडियल्स हम सबके होते हैं, पर हमें ये भी समझना चाहिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. तो ऑफ कोर्स आपको आइडियलाइज करना चाहिए लोगों को, उनसे सीखना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, पर किसी को भी इतना पेडिस्टल पे नहीं रखना चाहिए, यू नो, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट. तो चीज़ें सीखनी चाहिए लोगों से, बट ये भी सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या गलत करा है, तो कि ताकि आप वो चीज़ ना गलत करो. ऐसे सीख के चलना चाहिए. आई थिंक दिस इज़ वन थिंग जो हम सबको पता होनी चाहिए. Very true. Thank you so much, Ms. Khushi, for giving us this session. And friends, believe that you might have gathered lots and lots of information through this session of ours. We are going to upload this lecture on YouTube for you so that you can access this lecture the number of times you wanted. And yes, if you want to give your feedback for this particular lecture, do write to us at cecgurukul.live@gmail.com. We are going to meet again next Thursday, and we would be discussing on another important topic related to your careers. Till then, keep watching us, keep writing us. Thank you so much. Thank you, Ms. Khushi. Thank you.